پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک ترین نام میں آج شب آپ تمام میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں جو ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی follow.jesus7 پر شریک ہیں، اور آپ تمام جو ہمارے ساتھ فیس بک کے پیجز پر شریک ہیں، اور ایون یوٹیوب اور واٹس ایپ گروپ میں بھی میرے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں آج شب پھر سے سلام عرض کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں خداوند خدا کی کہ اس نے ہمارے جیون میں یہ اور انمول لمحات فراہم کیے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو باہم مل کر سیکھنے والے ہو سکیں۔ جیسا ہمارے بھائی نے فرمایا، ہمارا کچھ تدریسی سلسلہ ہے علمی طور پر جس پر ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یوں تو ہمارا ہر پروگرام علم سے خالی نہیں ہوتا، لیکن آج کے دن میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا کہ واز کیسے تیار کیا جائے، میسج کیسے تیار کیا جائے، یا پیغام کیسے تیار کیا جائے، قبل اس کے کہ میں اس میں ذرا اور گہرائی میں اتروں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی ایرا وغیرہ نتھو خیرا خدا کے کلام کو اور اس کے پیغام کو اور اس کے میسج کو اور اس کے سرمن کو واز کو پیش نہیں کر سکتا۔ کلام خدا میں خدا بذات خود فرماتا ہے، شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند کے پاک کلام کو جو جانتے ہیں، نجات یافتہ ہے، روحوں کا بوجھ رکھتے ہیں اور خدا کے کلام سے ان کو انس یعنی پیار ہے، اور خدا کے کلام کی وہ تلاوت کرتے رہتے اور خدا باپ کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ روحانی لوگ، صرف وہی لوگ ہی اس خدا کے کلام کے بھیدوں کو روح القدس کی تحریک سے کھول کر دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کون پیغام پیش کر سکتا ہے، کون میسج دے سکتا ہے، واز کون کر سکتا ہے۔ اب قبل اس کے کہ میں اور آپ پیغام تیار کریں، ضرور ہے کہ ہمارے سامنے یا تو کوئی انویٹیشن ہوگی، یعنی کوئی دعوت۔ یہ دعوت کسی فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں آئیں اور عبادت کریں، یا کوئی کنونشن ہو سکتی ہے جہاں پر آپ نے میسج سنانا ہے، پیغام دینا ہے، یا کوئی اور طرح کے مواقع ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ نے میسج دینا ہے۔ کسی کی شادی ہے، کسی کی انگیجمنٹ ہے، بیبی پیدا ہوا کسی کے ہاں، شکر گزاری کی عبادت ہے۔ موقع محال کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مجھے کس ماحول میں جانا ہے اور وہاں کا ماحول کیا ہے
जहां मुझे मैसेज सुनाना है। यह बहुत जरूरी है। मसलन मैं यह कहना जरूरी समझूंगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी कन्वेंशन में कोई खुदा का खादिम कहता है कि जी आपने फलां तारीख को हमारे कन्वेंशन में बोलना है, तो मैं सोचता हूं कि केवल इसके कि ठीक है जी, जरूर 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 कहा जाए, थोड़ा सा वक्त लिया जाए और उस इनवाइट करने वाले खादम को वक्त दिया जाए और इस दौरान खुदा के हुजूर मदद तलब की जाए कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि अगर खुदा आगे आगे जाएगा तो काम होगा, अगर खुदा को पीछे रखेंगे, खुद को आगे, तो काम नहीं होगा। और फिर जब ग्रीन सिग्नल ऊपर से मिलता है तो फिर उस खादम से बात करें, और वो बात यह कि हुजूर चंद एक बातें हैं मैं पूछना चाहता हूं कि मैं अब तैयार हूं आपके यहां इस कन्वेंशन में बोलने के लिए, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि इस कन्वेंशन में जो लोग आ रहे हैं वो निजात याफ्ता है, उनकी अक्सरियत ऐसी है, या ज्यादातर गैर निजात याफ्ता है, ताकि मैं उसी तरह से खुदा के हुजूर मांग कर पैगाम तैयार कर सकूं। दूसरी बात, आप उनसे यह पूछ सकते हैं कि आप यह बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस कन्वेंशन में आपके लोगों को क्या सीखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जहां कन्वेंशन हो रही है वो पिछले साल भी की थी और उससे पिछले भी, और ये 13वीं कन्वेंशन है और 14वीं कन्वेंशन है और बस कन्वेंशन में आए और कलाम सुनाए। ना ना ना, आपको पूछना है कि जी क्या जरूरत है आपकी कलीसिया की और लोगों की जिनमें आप मुझे बुलाते हैं, ताकि मैं उसी तरह वहां पैगाम तैयार करूं। यह जरूरी है। या मौजू क्या है यह पूछा जा सकता है, या क्या आपकी कोई कीवर्ड्स, कोई मरकजी आयत, कोई हवाला है जिस पर मुझे बोलना है, प्लीज मुझे बता दीजिए। और यह भी बता दें कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक नहीं, क्रिश्चियन टाइम के मुताबिक मुझे कितनी देर बोलना है। 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, कितना, और उतना ही मुझे तैयार करना है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे पॉसिबल हैं, जैसे खुदा करूं हमें हदायत करे, लेकिन वो टाइम फ्रेम के अंदर रहना बहुत जरूरी है। तो अगर कन्वेंशन में बुलाया जाता है तो मौजू का पूछना जरूरी है। अगर उन्होंने कोई हवाला तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, तो उस हवाले की बाबत जानना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि मैं कितना वक्त लूंगा, और यह जानना भी जरूरी है कि वहां के लोगों की आप क्या जरूरत महसूस करते हैं, या आपकी कन्वेंशन का जो मेन टॉपिक है, मजमून है, वो क्या है। इससे हमें तैयारी करने में और बेहतरी महसूस होती है। या कोई फैमिली मीटिंग है, और अगर फैमिली मीटिंग में बुलाया जाता है तो वहां के मौका माहौल का जानना बहुत जरूरी है। आप घर वालों से पूछें, जी ठीक है, लेकिन मुझे यह बताएं कि ये इस इबादत के पीछे क्या वजह है। कोई शुक्रगुजारी की इबादत है, या वैसे जनरली आप चाहते हैं कि मैं आऊं और इबादत करूं। कोई खास टॉपिक, कोई खास मौजू जिस पर आप सीखना चाहते हैं। और जब कोई मौजू मिल जाए तो उसके बाद यह ज्यादा इजी होगा कोई खास पैगाम तैयार करके फुल प्रिपरेशन के साथ
وہاں جایا جائے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں کلام سنانا ہے وہاں کی ضرورت کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہ ہیں. میں ان تمام وجوہ پر اس وقت جا نہیں سکتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ضرورت کچھ اور ہو اور ہم کلام کچھ اور سنا رہے ہیں. ہوگا تو خدا کا کلام، لیکن وہ موقع محال کے مطابق شاید نہ ہو. تو ضرورت پوچھ کر اگر تیاری کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری بات بھی ہوگی، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ضرورت سامنے آ جائے کہ یہ ضرورت ہے، میں جب ضرورت کی بات کرتا ہوں تو آئے دن مختلف لوگوں کی فون کالز بھی جو میں اکثر اٹینڈ نہیں کر پاتا، لیکن آڈیو میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں، اور ان میں ایسے لوگوں کے بارے میں جن میں کے خاندانی زندگی میں پرابلمز ہیں، کہتے ہیں دعا کریں. اور پاسبل ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ میرے گھر آئیں اور آ کے دعا کریں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خاندان میں پرابلم کیا ہے. کیا بچے خدا سے دور ہیں اور وہ دعا کی طرف نہیں آتے، یا میاں بیوی میں انبن ہے، یا روحانی زندگی کم اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے؟ کیا ریزن ہے؟ کسی بیبی کی ڈیڈیکیشن ہے؟ کیا وجہ ہے جس سبب سے وہ بلا رہے ہیں؟ اچھا ہے کہ عبادت کی جائے، لیکن یہ اور اچھا ہوگا کہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے وجہ اور ریزن کیا ہے کہ مجھے اس عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بشارتی عبادت ہے. اگر کنونشن ہے تو پاسبل ہے کہ کہا جائے کہ یہ بشارتی عبادت ہے. اس میں بھی ہم بشارتی میسج تیار کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جب موضوع سامنے آ جائے، حوالہ مل جائے اگر مل جائے تو، یا ضرورت سامنے آ جائے تو اس کے بعد خدا کے حضور جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے، ضروری نہیں ایک ہی دن سارا ٹائم، لیکن جب تک کہ آپ اس ڈیٹ تک پہنچتے نہیں، مسلسل خدا کے حضور بیٹھ کر حکمت مانگتے رہیں، کیونکہ یہ کلام خدا کا ہے، لوگ خدا کے ہیں، ہم خدا کے ہیں، اور پاک روح کی مدد کے بغیر ان بھیدوں کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ دعا کرنا شروع کریں، خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں، خدا کے حضور جھک جائیں، اس سے ترتیب مانگیں، الفاظ مانگیں، نکات مانگیں جو اس خاندان کی یا اس عبادت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہو. نمبر 3، اگر کوئی موضوع ملا ہے تو اس موضوع کے حوالے سے جو کتاب مقدس سے متن نکالنا ہے، یعنی حوالہ یا کوئی آیت یا کوئی پیراگراف، وہ اس موضوع سے متعلق ہو اور اس متن سے وہ موضوع نکل رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ ضرورت کچھ اور ہے اور حوالہ کہیں اور سے نکالا جو اس ضرورت کے عین مطابق نہیں ہے. اور میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں، مثلا اگر خاندان کے افراد میں محبت اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے،
कुछ दिन पहले शायद किसी ने मुझे एक पिक्चर भेजी और वो देखकर अफसोस हुआ। और वो जो पिक्चर थी वो ये कि बुजुर्ग मां एक कोने में सोफे पर बैठी हुई है और उनके बेटे और बेटियां और आगे उनके बच्चे भी उनसे मिलने के लिए आते हैं। और अम्मा कोने में बैठी हुई है और ये भी सारे मॉडर्न सोफों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हर कोई अपने सेल फोन के साथ लगा हुआ है। और जो उस बुजुर्ग मां से मिलने के लिए आए थे वो कहां गया मालूम नहीं, कारपेट के नीचे चला गया। तो इससे पता चलता है कि कई खानदान हैं जिन खानदानों में मोहब्बतों का जनाजा उठ गया है, अज़दवाजी रिश्तों में भी और खानदान के अफराद में भी। सब में नहीं, आपके खानदान में ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे खानदानों में यही हाल है। इस सूरत में क्या करें? अगर हम यूहन्ना 3:16 निकालें, अगर हम सोचते हैं कि जी यहां पर इन में मोहब्बत की कमी है और हम यूहन्ना 3:16 निकालें और लफ्ज मोहब्बत को पकड़ लें, क्योंकि आयत में लिखा है और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमने मोहब्बत लफ्ज पकड़ लिया और मोहब्बत पर कहना शुरू कर दिया, जितना भी पहाड़े आते थे सब पढ़ लिए, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं कि ये आयत किस मोहब्बत की बात कर रही है, किस मौजू पर बात कर रही है, इस आयत में कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, सियाको सबाक क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी लफ्ज को पकड़ना ये कमाल नहीं है। और ये आयत बाय द वे खानदान में जो मोहब्बत की कमी है जबरदस्ती फिट करें तो हो सकती है, लेकिन ये वहां फिट नहीं आती। इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि अगर हम इफ्सियों के खत में चले जाएं, इफ्सियों 5 बाब में, वहां पर मियां बीवी की मोहब्बत के बारे में भी वाज़े तौर पर मौजूद है, औलाद के बारे में भी, फर्जंदों के बारे में भी, पेरेंट्स के बारे में भी क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि वो किस तरह एक दूसरे से मोहब्बत करें। या कोई एक आध आयत हो सकती है, मिसाल की किताब से कोई आयत ले सकते हैं, वाज की किताब से ले सकते हैं, जबूर से ले सकते हैं, पूरी बाइबल पढ़ी है, या कोई मिसाल ले सकते हैं, मसलन एली की मिसाल जिसने अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की, तो नतीजा क्या निकला। इस तरह के हवाला जात जो उस मौका महाल पर फिट आए वो हवाला जात निकाले जाएं ताकि लोगों की बेहतर तौर पर मदद हो सके, लेकिन हवालों की भरमार ना हो। क्योंकि मैं कई जगहों पर देखा है कि अगर खानदानी इबादत है और शुरू में मेरे ख्याल में आधे घंटे से ज्यादा लोग अगर इंटरेस्ट ना हो तो नहीं हजम कर पाते, और होता यह है कि बाज़ औकात उस आधे घंटे में 10 मिनट का एक, 5 मिनट का एक हवाला पढ़ लिया खुद, और उसके बाद उस हवाले में से एक बात पकड़ी और कहा जी ये खुदा कहता है, और फिर हां जी काका तुम पढ़ो, फिर 5 आयता उन्हें पढ़ छड़िया, 10 उसने पढ़नी, और पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक छलांगों पर छलांगे ते पल्ले कख भी ना पिया। तो ऐसे बात नहीं होती जी। एक ही रेफरेंस लिया जाए और जरूरत हो तो 1 या 2 आयात पर मबनी और रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं, डिपेंड करता है टाइम पर। लेकिन अगर एक ही हवाले में सब कुछ ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर इधर उधर भागने की जरूरत
नहीं है। तो ऐसा हवाला निकालना है जो उस मजमून से ताल्लुक रखता हो, और कोशिश करनी है कि यह ज्यादा तवील हवाला ना हो। और अगर तवील हवाला है, मसलन 10, 15, 20 आयात, 10 से ऊपर अगर आयात हैं, तो उनमें से एक मरकजी आयत, कलीदी आयत ले लें और उसके आगे पीछे 1-2 आयतें, 3-4 आयात की तलावत कर लें। सारा हवाला ना पढ़ें, आप पेश जरूर करें कि मैं 10वीं आयत से लेकर 25 आयत तक, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ 3 आयात को पढ़ूंगा और वो फलां फलां है, मेरा मौजू ये है। और इन आयात यानी इस पूरे हवाले में जो 10 से 25 है, इस पूरे हवाले में यह बात बयान की जा रही है, लेकिन वो जो मरकजी आयात आप ले रहे हैं वो निचोड़ के तौर पर होगी और आप उन्हीं 2-3 आयात के चौगिर्द घूमेंगे ताकि दूसरे की बेहतर तरीका से मदद हो सके। चौथे नंबर पर, जब आपको हवाला मिल जाता है तो केवल इसके कुछ और करें। दुआ भी आप कर रहे हैं, हवाला आपको मिल गया है, मौजू भी मिल गया है। अब ये जो हवाला दिया गया है, बेहतर होगा कि इसको बार बार तलावत करें, बार बार तलावत करें। और जब हम तलावत करते हैं तो वहां जो मुश्किल अल्फाज हैं, सब कुछ तो मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, किसी को भी सब कुछ नहीं आता, क्योंकि यह खुदा का कलाम गहरे समुंदर की मानिंद है। और अगर कोई लफ्ज मुश्किल है तो उसको कलम जद करें, अंडरलाइन, या अलग से नोटबुक पर लिख लें। अगर आप खुदा के कलाम पर लकीर लगाने के हक में नहीं है तो अलग से नोटबुक पर नोट कर लें, मुश्किल अल्फाज को अलग लिख लें, और जब ये दौर मुकम्मल हो जाए तो फिर उनके माना तलाश करें कि इस लफ्ज के माना क्या है। और अगर मुमकिन हो तो अगर उस मतन को और उन आयात को अंग्रेजी की बाइबल साथ रखकर तलावत करें और बेहतर तरीका से मदद होगी। साथ अगर कोई तफसीर या तफासीर हूं और उन तफासीर को रख कर अगर उन आयात का मुतालिया किया जाए, मैं समझता हूं और मदद होगी। फिलहाल आप मुश्किल अल्फाज के माना और जो खास थॉट्स यानी ख्यालात इस मतन में, हवाले में आपको मिलते हैं, उनको लिखते चले जाएं। आपके पास मटेरियल काफी होता चला जाएगा। और फिर 5वें नंबर पर, ये जितने भी आपने पेपर लिखा है, इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा आप 3 एक ऐसे निकात तैयार कर लें, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, उस बड़े मजमून के तहत, यानी इसमें क्या नुक्ते नजर आते हैं। मैं मिसाल देता हूं, अगर बिशारती कन्वेंशन है और वहां पर आपको बुलाया जा रहा है और खुदा के खादम ने आपको कहा कि जी मैं चाहता हूं कि लोग निजात पाएं, खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, आप मौजू मिल गया, आपको बस हालात मिल गए हैं, अब मौजू खुद ढूंढ लें। अगर मैं इस जगह पर हूं तो बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन सिर्फ आपको मिसाल देने के तौर पर कहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसका मौजू रखूंगा लौट आ, यानी वापस आ, लौट आ। और इसके लिए अगर मैं हवाला निकालूंगा तो मैं लूका की इंजील और इसके 15 बाब में जाऊंगा और इसकी 11 आयत से लेकर 32 आयत तक, ये थोड़ी सी आयात नहीं है, 12-13 आयात है, 22-23 आयात है।
और मैं इन 22-23 आयात को नहीं पढ़ूंगा। और वैसे भी यह हवाला इतना मारूफ है हर किसी को इस हवाले के बारे में मालूम है कि इसमें क्या है। इसमें मुशर्रफ बेटे के बारे में है। आप कई मर्तबा, चंद मर्तबा इस हवाले को पढ़ें, आपका मौजू आ गया है और वो है लौट आ। कन्वेंशन वालों ने कहा हम चाहते हैं कि लोग निजात पाएं। आपके लिए आजादी है कि अब आप कहां से हवाला निकालें और क्या मौजू निकालें, और फिर आप उसके 3 निकात बना लें। इस पूरे हवाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहें इस हवाले से आप वाकिफ हैं, लेकिन जो मरकजी 1-2 आयात हैं उन आयात की तलावत कर लें। जैसे बेटे ने देखा कि मैं किस हालत में हूं, और फिर उसके दिल में आया कि मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा और उसको यह कहूंगा कि मैं खुदा आसमान वाले की निगाह में भी और तेरी नजर में भी गुनाहगार ठहरा। इस आयत को तलावत कर लिया जाए, या चंद एक और आयात को इसके साथ, और उसके बाद 3 एक निकात बना लें। बाय द वे, अगर 2 निकात हूं तो कोई बुरा नहीं है, अगर 4 निकात हूं कोई बुरा नहीं। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर मैं 3 निकात निकालूंगा तो एक नुक्ता यह निकालूंगा कि खुदा के साथ रफाकत, इंसान की खुदा के साथ रफाकत, और मैं अदन में चला जाऊंगा। अदन के बारे में बताऊंगा कि खुदा और इंसान के बीच में कैसी रफाकत थी। और इधर ये जो मुशर्रफ बेटा है, जब ये अपने घर में था तो उसका और उसके बाप के साथ कैसा रिश्ता था, क्या कुछ उसका था, किस चीज की कमी थी, सब कुछ था। बाप था, घर था, नौकर थे, मालो मता था, सब कुछ था। अदन में भी सब कुछ था, लेकिन हमें वो रास नहीं आया। इस मुशर्रफ बेटे के हां भी बहुत कुछ था, लेकिन अखा नहीं सी रज दियां पईयां। तो पहला पॉइंट तो मैं यही कहूंगा, खुदा के साथ रफाकत। दूसरा पॉइंट, खुदा से दूरी। जब गुनाह बीच में आ गया तो अदन में कैसे खुदा और इंसान के बीच में जुदाई, मौत वाकया हो गई। और मुशर्रफ बेटा जब अपने बाप से सब कुछ लेकर गोया हथिया कर जब वो चल पड़ा, किस कदर आवारगी में उसने अपना जीवन बसर किया, आप जानते हैं। मैं डिटेल नहीं बयान करूंगा, मेरा मकसद वाज करना नहीं है। आदम और हवा किस तरह आवारगी के शिकार हुए, मुशर्रफ बेटे के साथ क्या हुआ उसके बाद आप जानते हैं। खुदा से दूरी। फिर आप करंट सिचुएशन में लेकर आए, जब खुदा के साथ हमारी रफाकत हो तो क्या होता है। जब खुदा के साथ रफाकत ना हो, हम खुदा से दूर चले जाते हैं। फिर हम इंजीर के पत्तों से अपनी हेल्प लेते हैं, फिर हम सुअरों की फलियां खाते हैं। मिसाल दे सकते हैं इसी टेक्स्ट में रहकर। और फिर तीसरा पॉइंट, वापसी का दरवाजा खुला है। यहां आप वो हवाला दे सकते हैं जिसमें लिखा है खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, या खुदावन अपनी आमद में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि तहम्मुल करता है। क्यों? कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। और फिर आप कह सकते हैं आदम और हवा से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए इंतजाम किया कि वो वापस पहले वाले मकाम पर लौट आए।
اور आज जरूरत है कि लोग वापस अपने बाप से ताल्लुक कायम करें। मुशर्रफ बेटा सुअरों की फलियां ही नहीं खाता रहा, कहें आप, और फिर कहें कि उसकी सोच में एक डिसीजन आया कि मुझे यह फैसला करना है, मुझे वापस जाना है। ओ, यही तौबा है। वो अपने बाप की तरफ आया और बाप तो पहले ही अपने बाजू खोल कर अपने बेटे की इंतजार करता था, क्योंकि उसके जिगर का टुकड़ा था। खुदा बाप आपका भी इंतजार करता है। आप कह सकते हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप उस जहां पर पैगाम सुना रहे हैं वहां पर आप कह सकते हैं, खुदा बाप आपका भी इंतजार करता है, मेरे बेटे वापस लौट आ। अपने मौजू को, पैगाम को बार बार बीच में रिपीट करते रहना है। खुदा चाहता है कि लौट आ दुनिया की भीड़ में। अच्छा हो कि किसी क्वायर को यह भी कहा जाए कि आप जब गीत गाएं तो ये वाला पैगाम से पहले गीत गा लें, दुनिया की भीड़ में तू क्यों खो रहा है, आ बेटे लौट आ। और ही ज्यादा रंग जमेगा। तो कन्वेंशन के पहलू के एतबार से मैंने आपको यह बताया, और फिर एंड पर सिर्फ ये 3 निकात पेश करने के बाद लोगों को दावत देना है, मदऊ करना है कि लोग जो अपने आप को दूर पाते हैं खुदा बाप से, अपने खुदा बाप की हुजूरी से दूर पाते हैं, उनके लिए मौका है कि वो खुदा बाप की तरफ रुजू लाए। अभी इसी वक्त उनको मौका दें, उनको कहें कल के बारे में कोई नहीं जानता। लोगों को कन्विंस करें पाक रूह की तहरीक से, ताकि वो खुदाबंद की तरफ रुजू लाए। अगर खानदानी तौर पर कोई प्रॉब्लम है, खानदानी तौर पर कोई मसला है, तो जैसे मैंने कहा, इफ्सियों 5 बाब का हवाला मैंने आपके सामने रखा है। इस हवाले को आप ले सकते हैं। अगर खानदानी इबादत है, खानदान में कुछ प्रॉब्लम है, औलाद के लिए अलग हवाले हैं, मियां बीवी के लिए अलग है। अगर मियां बीवी की बात है तो हम इफ्सियों 5 बाब की 21 आयत से अब देख सकते हैं, बाद में क्लियरली वहां पर मौजूद है कि मियां बीवी के लिए क्या क्या अहकाम है खुदावंद ने दिए हैं। और जब हम उस हवाले की बात करते हैं, आप मौजू दे सकते हैं ताबे फरमानी, लेकिन हिट नहीं करना, आप ऐसे हैं और आप ऐसे हैं और तुम खराब हो और तुम खराब हो। नो, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यह है कि खुदा का कलाम क्या कहता है, कि हम किस तरह से बात करें। एक ये कि इस हवाले में, यानी बीवी के लिए क्या हुक्म है। अच्छा, बीवी के लिए है, शोहर के लिए तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, शोहर के लिए भी है, बीवी के लिए भी जो है वो भी, और जो शोहर के लिए है भी वो भी सुनाना है। बीवी के लिए ये एक नुक्ता है, शोहर के लिए दूसरा नुक्ता है, और तीसरा नुक्ता मसीह खुदाबंद ने मिसाल दी है कि मैंने दुल्हन से, मैंने अपनी कलीसिया से कैसी मोहब्बत रखी, जान दी। और फिर अप्लाई करना है, क्या हम एक दूसरे के लिए बर्दाश्त करने, मसीह कब से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक दूसरे की ताबे फरमानी में है, और क्या मसीह जैसी मोहब्बत हम एक दूसरे से रखते हैं। यानी इस तौर पर क्वेश्चनियर अपने जहन में तैयार करने हैं कि आप किसी को डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, आप खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले खुद महसूस करेंगे, जहां जिथे जख्म होवेगा ना, नमक उथे लगेगा ही, मर्चा लगन गया तो नो प्रॉब्लम, ये पाक रूह का काम है, लेकिन हम किसी को हिट ना करें। और मैं ये भी बताता चलूं, अच्छा होगा कि जब हम इन 3 नकात को, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, अगर आपको खुदा करू हदायत देता है, आप 2 नकात लें या 4 लें या एक ही नुक्ता हो, इट्स अप टू यू। लेकिन फिर उसके साथ साथ
ये तीनों नुकात इस मतन की रूह से ताल्लुक रखते हो, ये कहीं उससे बाहर ना हो। और फिर अच्छा होगा कि अगर कोई शॉर्ट सी, कोई मुख्तसर सी मिसाल हो। मुशर्रफ बेटे वाली दास्तान में वो खुद बखुद एक मिसाल है, या अपनी जिंदगी से बता सकते हैं कि मैं खुदा से कितना दूर था और मैं किस तरह वापस लौट आया हूं। लेकिन मिसालें 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 मिसालें, कहानियां कहानियां, किस्से किस्से, ना 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 ना, इतना नहीं। सिर्फ एक, खा वो पर्सनल लाइफ की हो या कोई ऐसी मिसाल जो इस जगह पर फिट आती हो, या कोई ऐसी मिसाल जो मिसाल आपने किताबों में पढ़ी है। एक आध मिसाल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये खाने के साथ चटनी का काम करेगी, अगर हम कोई मिसाल साथ लें तो, लेकिन वो लंबी ना हो, मुख्तसर तरीन मिसाल हो, क्योंकि मिसाल ही सारा टाइम ना ले जाए, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को भी लोगों के सामने पेश करना है। लेकिन जब आप अपने मैसेज का अब नतीजा निकालते हैं, नतीजा उख्ज करते हैं, एक लिहाज से आपका मैसेज अभी मुकम्मल हो रहा है, अब आप बंद कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा है कि वो नकात आप दोहराएं, या जो खुदा का रूह आपको कहता है कि ये पॉइंट आपको मलहूज़े खातर रखने हैं और इनको दोहराने हैं, लोगों के लिए ये पॉइंट हैं, आप समझते हैं कि ये पॉइंट लोगों के लिए सीखना जरूरी है, उनको दोहराएं और उसके बाद उनको कहें। अगर आप में से कोई अपना आप खुदावन के सुपुर्द करना चाहता है, अपना दिल खुदावन को देना चाहता है, अभी आपके लिए मौका है, लेकिन मजबूर नहीं करना, क्योंकि ये हमारा काम नहीं कि किसी को हम कन्विंस करें। मौका जरूर दें, लेकिन पाक रूह को ज्यादा मौका दें कि वो उन लोगों की जिंदगी में काम करे और यूं वो लोग खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू लाएं और उनको मौका दें, आल्टर काल जिसे कहते हैं, ताकि वो मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। लेकिन साथ साथ ये भी कहें कि अगर आप अभी नहीं अपना दिल दे रहे, बाद में आप खुदावंद के खादम से जो आपका रहनुमा है, आप उससे मिलें, उससे कहें मैं अपना दिल खुदावंद को देता हूं, आप मेरी रहनुमाई करें, वो आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई कर पाएंगे। अजीजों, आज वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद वाज तैयार करने और सरमन या मैसेज तैयार करने के ताल्लुक से बहुत कुछ और कह सकूं, क्योंकि टाइम इजाजत नहीं देता। खुदावन ने चाहा तो इसका जो पार्ट 2 है, हम नेक्स्ट सैटरडे को बफजले खुदा मिलकर उस पर सीखेंगे और बेहतर तरीका से, ताकि हमारा मैसेज तैयार करना और बेहतर से बेहतर रूह कुद्स की तहरीक से और लोगों की जरूरत के मुताबिक हो सके। जो कुछ हमने आज सीखा है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए, किसी मौजू पर जो आपके इलाके और आपकी कलीसा या आपके कम्युनिटी की जरूरत है, उस मैसेज को कोई मौजू लें और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करें, तैयारी करना शुरू करें, हवाला ढूंढें, मुश्किल अल्फाज ढूंढें, अगर कोई मिसाल है तो वो ढूंढें, लेकिन मिसाल हमारे मुआशरे में फिट आने वाली हो, कोई ऐसी मिसाल ना हो जो अजीब सी लगे वहां पर। खुदावन आज के इस कलाम और इन अच्छे टूल्स के वसीला से मुझे और आपको बरकत अनायत फरमाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।